Hello children, welcome back to your social class. So this is new class for you, new subject for you, a different level. So we will start from your sorry, we will start from your very first chapter, that is the medieval years and its sources. So you need to read it very thoroughly. These are very important as well as very interesting chapters. So once you will read it, you will be able to understand sorry, everything which will be taught. So we'll first read the spotlight. Extent of the medieval period, gear up. Okay, so we will be learning about the medieval period, its sources, what happened, what all happened at that time, what was the time period, who all ruled that period, what were the literary sources, archaeological sources, about monuments, about coins, about the history. Okay, that who all people ruled, what was important at that time. Okay. So let's read the medieval period first. Here it is written timeline. See, it is here written timeline above the introduction. BC is before Christ and AC everybody knows is after Christ. So we are basically on the early medieval period, was from 800 BC to 1200 BC, and late medieval period was from 1300 BC to 1800 BC. Okay, so we will be learning about early medieval period also and late medieval period also. So let's continue with the introduction. In India, the medieval period stretches from nearly 1,000 years. It began in 800 CE and continued till 1800 CE. As I told you, from 800 to 1800, but that too was divided into two halves, right? From 800 to 1200 was the early medieval period, and 1300 to 1800 were the later medieval period. All right, this period was marked by diverse changes in the political, social, economic, and cultural life of the people in the subcontinent, further divided into two phases. The earlier medieval period from 800 to 1200 deals with the history of powerful dynasties such as the Palas, Rajputs, and Rashtra, Kutas and Cholas. ओके, सो ये भी दो में डिवाइडेड थे, जैसे आपके अर्ली मेडिवल पीरियड और लेट मेडिवल पीरियड में 800 टू 1200 BC में जो भी चीज़ें थी वो किस पे करती थी, क्या चेंजेस आए थे उसमें, उस पीरियड में पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली और कल्चरली पीपल की लाइफ कैसी चलती थी उस टाइम में, क्या ओढ़ना पहनना खाना होता था उनका, कैसे उनका लिविंग लाइफस्टाइल होता था, कल्चर होता था, वो सब हम पढ़ेंगे. तो उसमें उस टाइम पावरफुल डायनेस्टीज जो थी वो कौन सी थी? पालास, राजपूत थे, पालास थे, राष्ट्रकूतास थे और चोलास थे. हिस्ट्री डेवलपमेंट भी उस टाइम आई थी. वेरियस हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ब्रॉट अबाउट द रूल ऑफ अफगान्स, टर्क्स एंड मुगल्स अकर्ड इन द लेट मेडिवल पीरियड. और मेडिवल पीरियड में क्या हुआ था बेटा? जो सारा हमारा आप पढ़ते हैं ना, अफगान, टर्किश, उस टाइम पे मुग़ल के टाइम पे, अकबर वगैरह के टाइम का वो आपका बेटा लेट मेडिवल में आता है. ठीक है, तो वो हम उसके बारे में हिस्टोरिकल चेंजेस क्या आए थे वो हम उसमें पढ़ेंगे. गुड टू नो वाला बॉक्स पढ़ेंगे. ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड feudalism was a dominant trend in Europe. It was socio-political system in which the king shared power with the nobility in return for military service. तो बेटा ये डोमिनेंट एक तरीके का ट्रेंड था, ये यूरोप के टाइम पे होता था. सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम, उसमें क्या होता था, जो किंग होता था अपनी पावर शेयर करता था और इन रिटर्न मिलिट्री सर्विसेज लेता था. मिलिट्री सर्विस में मतलब अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी लेता होगा. द नोबिलिटी अलाउड द कॉमन पीपल टू यूज़ इट्स लैंड इन रिटर्न फॉर मनी एंड सर्विसेज. लोगों को क्या करता था? वो लोगों को अपना लैंड देता था. ऑब्वियसली किंग था वहाँ का, तो बहुत रिच होगा, तो वो क्या करता था? अपनी लैंड देता था कॉमन मैन को यूज़ करने के लिए, और उन लोगों को बोलता था कि आप मेरे को बदले में आप मुझे सर्विस दो. ठीक है. डिफरेंट नेम्स फॉर इंडिया.
इंडिया के क्या डिफरेंट नेम्स थे, अब हम वो पढ़ेंगे. अक्रॉस द एजेस इंडिया हैज़ बीन रेफर्ड टू बाय डिफरेंट नेम्स. However, quite often the area of land suggested by each name has differed. The geographical area varied from the region of the Indus and its tributaries to the entire subcontinent. The more famous among these names are listed below. उस टाइम पे क्या होता था बेटा, डिफरेंट नेम से इंडिया को नाम दिए जाते थे उसके रीजन और उसके जोग्राफिकल एरिया को देखते हुए. तो अब हम वो उसकी लिस्ट है वो हम पढ़ेंगे कि क्या क्या बोला जाता था. ठीक है, तो क्या है पहला, जम्बू विपा. जम्बूव विपा. द नेम इज मेंशन्ड इन एशियन बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड द पुराण्स. जो पुराने बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे, जो भी लॉर्ड बुद्धा के टाइम के टेक्स्ट बने हुई थी, बुक्स बनी हुई थी, पुराण थे जो पुराने, उसमें इंडिया को ये बोला जाता था. भारतवर्षा. द कंट्री वॉज सो नेम्ड आफ्टर द भारत ट्राइब दैट एग्जिस्टेड इन द ऋग्वेद टाइम. जब ऋग्वेद, वो जो वेद है हमारे 4 तरह के, उसके टाइम पे भारतवर्षा भी उसको कहा जाता था. वैदिक टाइम पे इंडिया को भारत वर्षा कहा जाता था. आर्यवता, द लैंड ऑफ द आर्यंस. आर्यवर्ता. आर्यन से ही ये नाम आर्यवर्ता बना है. ये कब दिया गया था? 150 BCE टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. जो रीजन मैंने आपको बताया ना, जोग्राफिकल एरिया और रीजन के हिसाब से इन्होंने इंडिया को नाम दिए हुए थे. और आर्यवर्ता कब दिया था इन्होंने? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया को दिया गया था 150 BCE में. टीन शू एंड यिन टू. द चाइनीज़ यूज दीज टर्म्स फॉर इंडिया. चाइनीज़ जो लोग थे वो इंडिया के लिए ये टर्म यूज़ करते थे. हिंदुस्तान कहाँ से आया? डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इंदस और इंदोस. हिंद मतलब दिस टर्म वॉज यूज बाय द अरब्स. अरब्स ने हिंद वर्ड यूज़ करा. और इंडिया किसने? ब्रिटिशर्स ने इंडिया इसको दिया फाइनली, जो हमारा अब है. फीचर्स ऑफ द मेडिवल पीरियड. अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ द मेडिवल पीरियड इन इंडिया. जो हमने अभी मेडिवल पीरियड पढ़ा ना बेटा, 800 to 1200 BC, वो CE, वो हम अब पढ़ेंगे कि हम उसका की फीचर्स क्या है. ठीक है. द मेडिवल पीरियड इन इंडिया वॉज क्वाइट इवेंटफुल. सेवरल चेंजेस टुक प्लेस सोशियो कल्चरली एंड पॉलिटिकल लाइफ में. लोगों के पॉलिटिकली और सोशियो कल्चरल चीज़ों में मेडिवल पीरियड में चेंजेस आए थे. लेट्स टेक अ ब्रीफ लुक. स्ट्रगल फॉर पावर बिटवीन द पालास, प्रतिहार्स एंड राष्ट्रकूटास में स्ट्रगल पावर हुई. एमर्जेंस ऑफ सेवरल राजपूत किंगडम्स इन नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया. नॉर्दर्न पार्ट और वेस्टर्न इंडिया के पार्ट में कौन अराइव हुआ, कौन एमर्ज हुआ? राजपूत किंगडम्स काफ़ी आ गए. एक्सटेंसिव क्लियरिंग ऑफ लैंड लेड टू स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लार्जर सेटलमेंट. जैसे जैसे फैमिलीज़ बढ़ी, पॉलिटिकल और सोशियो कल्चरल बढ़ा, वैसे वैसे फैमिलीज़ बढ़ी, किंगडम्स बढ़े, वैसे वैसे क्लियरिंग ऑफ लैंड हुआ और लार्जर सेटलमेंट्स होते गए. मतलब खेत खलियान कटते गए. ऑब्वियसली जब आबादी बढ़ेगी तो कटता जाएगा ना, जो फॉरेस्ट वगैरह होंगे वो कटते चलेगा और फिर वहाँ पे सेटलमेंट्स होने लगे. फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ विद इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट डिफरेंसेस. कॉम्प्लेक्स और सोसाइटीज़ बनने लगे. अराइवल ऑफ टर्क्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत. और उस टाइम पे क्या हो गया? टर्क्स भी आ गए थे नॉर्थ वेस्ट से और दिल्ली सल्तनत का भी इस्टेब्लिशमेंट हो गया था. स्प्रेड ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर भी आ गया. मराठास और सिख का राइज हुआ. ट्रेड को इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मिली. इंक्रीज इन ट्रेड एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया. अराइवल ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़ भी आई. वहीं से हमारा फिर लेन देन शुरू हुआ, लोगों का सेटलमेंट शुरू हुआ, एग्रीकल्चर शुरू हुआ, बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू हुआ. एमर्जेंस ऑफ न्यू सिटीज़ बनी. जब लोगों की आबादी बढ़ी तो नए शहर भी डेवलप हुए. इवोल्यूशन ऑफ कॉम्पोजिट इंडियन कल्चर. और धीरे धीरे वैसे ही इंडियन कल्चर भी बढ़ता